My dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Grammar chapter number 3, Pronoun and its kinds, page number 25 to 29. Pronoun and its kind. Pronoun is used in place of noun in a sentence. Pronoun जो होते हैं वो noun की जगह पे हम sentence में use करते हैं. It is a noun replacing words और इसको हम noun replacing words भी बोलते हैं. In the sentence given below, you can see how noun written in bold is placed by pronoun. कि noun को जो bold में लिखी हुई है उसको हमने कैसे pronoun से replace किया है, उसकी जगह पे लगाया है. Written in bold italic. So for example, Mr. Singh is my neighbor. Mr. Singh जो है इसमें noun है. He is a kind-hearted person, so he is a pronoun in this sentence. Number 2, Radhika is my cousin. Radhika is a noun. She is very beautiful. She is a pronoun. So, father brought me a teddy bear. Father is a noun. So, teddy bear is also a noun. It is white in color. It is a pronoun in this. Rakesh, Vibhu and Tarun are friends. They are playing football. So, they is a pronoun. And Rakesh, Vibhu and Tarun is a noun. He is Mr. Pritam. Mr. Pritam जो है वो noun है. He is our English teacher. So he is a pronoun in this sentence. Kinds of pronoun. Pronoun कितने प्रकार का होता है? Personal pronoun. Personal pronoun are used for persons and things. Personal pronoun जो होता है वो हम यूज़ करते हैं person के लिए, कोई भी इंसान या things या कोई भी चीज़ों के लिए. It replace the pronoun. It replace the proper noun in the sentence. और वो replace करता है personal pronoun proper noun को sentence में. जैसे I, we, you, he, she, it, they, etc. Our personal pronoun. Let us have a look at the personal pronoun chart. Personal pronoun का chart देखते हैं. He, we, you, he, she, it, they, ये सब personal pronoun है. पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. प्रोनाउन में हम फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है. उसके नंबर्स जैसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ऐसे ही सिंगुलर प्लूरल होता है फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल और थर्ड में सिंगुलर लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं. सिंगुलर प्लूरल जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आई, वी और ऑब्जेक्ट में हो जाता है मी, अस. यू होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में होता है सेकंड पर्सन में यू. ऐसी थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट, दे और हिम, हर, इट, देम जो होता है वो ऑब्जेक्ट में होता है. यू कैन अंडरस्टैंड मोर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. ये फर्स्ट पर्सन है. आई मतलब अपनी बात करना जो होता है, आई और वी जिसमें हम लगाते हैं वो फर्स्ट पर्सन हो जाता है. वी पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स. सो वी भी जो हो जाएगा वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा. The principal has called you. You आ गया, so this is second person. You should pay attention to your studies, second person. He likes chocolate flavored ice cream, so third person हो गया. He, she, it, they. So she is the most studious girl in our school. So this is third person. It is your pencil box. This is third person. They are playing on the swings in the garden. So this is third person. They third person के लिए यूज़ करते हैं. Now possessive pronoun. Possessive pronouns क्या होती है, जिससे ये पता लगे कि possessive pronoun is a pronoun. It shows possessions और sense of belongings की वो चीज़ किसकी है, वो चीज़ पता लगे कि क्या चीज़ किसकी है, वो होता है पोजेसिव प्रोनाउन की पोजीशन. और ये पता लगे कि वो बिलोंगिंग्स वो चीज़ें किसकी हैं. जैसे योर्स, आर, माइन, हिज, हर, देयर आर पोजेसिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल दिस बैग इज़ माइन. सो माइन जो हो गया वो हो गया पोजेसिव प्रोनाउन. द अपार्टमेंट इज़ आर्स. आर्स जो हो गया पोजेसिव प्रोनाउन. द चार्ट इज़ योर्स. योर्स पोजेसिव प्रोनाउन. That shirt is his. This sari is hers. This project file is theirs. So his, hers, theirs
ये सब हो गया possessive pronoun. Now we will learn about demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun, as I told you this, that these those demonstrative होते हैं. So it point out demonstrative person or things. जो demonstrative person or things होते हैं जैसे these, that, these, those, one, same, वो सब होते हैं demonstrative pronoun. For example, this is my video game. That is my uncle's bungalow. These are our classroom. Those are his shoes. So this, that, these, those जो हैं वो demonstrative pronoun है. Reflexive pronoun, it reflects the action done by the subject upon itself. वो चीज़ जो एक्शन बताए कि वो चीज़ जो है सब्जेक्ट बताए कि वो चीज़ उसके द्वारा हो रही है. जैसे आई टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट इटसेल्फ से जैसे हम लोग यूज़ करते हैं. इट फॉर्म्स बाय एडिंग सेल्फ, बट उसमें हम लोग सेल्फ यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, सिंगुलर में भी और सिंगुलर नंबर्स के लिए सेल्फ यूज़ करते हैं, प्लूरल और प्लूरल नंबर्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, रवि इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. सो हिमसेल्फ is a reflexive pronoun. I completed the work myself. Myself, reflexive pronoun. They cooked food themselves. He brought the cake himself from the bakery. So themself, himself is a reflexive pronoun. Emphatic pronoun. What is emphatic pronoun? A pronoun that emphasizes the action done by the subject is called emphatic pronoun. वो प्रोनाउन जिससे पता चले कि जो एक्शन है वो एम्फेसाइज मीन्स फोर्सफुली हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एम्फेथिक प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे हम सेल्फ लगाते हैं ऐसे एम्फेथिक प्रोनाउन में भी हम सेल्फ और सेल्फ्स लगाते हैं. The two differ in the meaning that gives a sentence and the sentence structure that they follow. A reflexive pronoun tends to answer the question whom, while an emphatic pronoun leads emphasize in a sentence. The emphatic pronoun comes just after the personal pronoun, while the reflexive pronoun comes just after the verb. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो होता है वो वर्ब के बाद आता है और एम्फेथिक प्रोनाउन जो होता है वो जस्ट आफ्टर पर्सनल प्रोनाउन के आता है. फॉर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ गेव अस हिज न्यूज. सो हिमसेल्फ जो हो गया इसमें गेव, ये वर्ब, दिस इज व्हाट, दिस इज वर्ब. सो दिस इज वर्ब के बाद में जो आता है जस्ट आफ्टर वर्ब जो आता है वो एम्फेथिक होता है, तो ये हो गया एम्फेथिक प्रोनाउन. I myself did the homework. So I जो हुआ ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन. So in this sentence this is reflexive pronoun. Now we will learn about interrogative pronoun. Interrogative pronoun क्या होती है? It asks question. Interrogative में questions पूछे जाते हैं. WH से जो होते हैं words like who, whom, what, whose, which, whose, etc. are used as interrogative pronoun to ask question. Question पूछने के लिए जो interrogative होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं interrogative pronoun. For example, जैसे who called my name. who जो हो गया interrogative हो गया इसमें. which is your favorite color, interrogative हो गया. Now relative pronoun. Relative pronoun क्या होते हैं? It joins sentence and introduce noun clause and relative clause in a sentence. It joins sentence जैसे दो सेंटेंस को जोड़ के जो बनाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन उनको हम बोल देते हैं. ठीक है, उसमें नाउन क्लॉजेस होते हैं और रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं. वी विल लर्न मोर इन द सेंटेंस. प्लेयर्स लिसन केयरफुली टू व्हाट द कोच सेड. सो व्हाट आ गया इसमें, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं इंटेरोगेटिव में भी बट नाउन के साथ और फॉर्म में. राइट, इंट्रोड्यूस करें नाउन को. जैसे द बॉय हु इज स्लीपिंग इज माई नेफ्यू. राइट, सो दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है इट इज़ यूज्ड फॉर दोज पर्सन एंड थिंग्स
ये उन पर्सन और उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, उन इंसानों के लिए यूज़ करते हैं दैट आर टेकन एज होल और सेपरेट ग्रुप्स, जिसे सेपरेट ग्रुप्स में यूज़ किया जाता है. दे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अटेंशन टू ईच until in a groups. So प्रोनाउन होते हैं बेसिकली कि ना तो वो नाउन हो ना प्रोनाउन हो, सेपरेट उनका ग्रुप होता है, जैसे नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन. एग्जाम्पल, नाइदर of the two students is innocent, either of the two boys is lying. Right? So next one is रेसिप्रोकल प्रोनाउन. बेसिकली होता है जिससे ये पता चले कि दो लोगों का या दो सब्जेक्ट्स का क्या रिलेशन है, क्या आपस में रिश्ता है. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, द टू नेबर्स डोंट स्पीक्स टू ईच अदर. सो टू नेबर्स हो गए तो उससे पता चला, नेबर मतलब रिश्ते, पड़ोसी, तो रिलेशन का पता चल रहा है. दे ब्लेम्ड वन अनदर फॉर द एक्सीडेंट. Right? So these are reciprocal pronoun. Indefinite pronoun. What is indefinite pronoun? It is used to refer to person or things in a general way. Indefinite pronoun होता है जो कोई भी person और thing को general way में बोला जाए. Here numbers of person and things may not be known. मतलब indefinite की किसी भी नंबर्स में बोला जाए, एज जैसे नंबर्स का इनडेफिनिट होते हैं, नंबर्स कभी भी फिनिश नहीं होते, ज़रूरी नहीं है काउंटिंग ओनली 100 तक हो. सो इनडेफिनिट होते हैं ऐसे ही. फॉर एग्जांपल, जैसे वन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, नन इज टर्न्ड अप टू हेल्प द पुअर. सो दीज आर इनडेफिनिट प्रोनाउन. केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के क्या केसेस होते हैं? नॉमिनेटेड केसेस, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केसेस. जैसे फर्स्ट पर्सन हो जाता है सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल. नॉमिनेटिव केसेस में हम सिंगुलर प्लूरल में आई वी आता है फर्स्ट पर्सन में, और सेकंड पर्सन में यू आता है, ही शी इट दे आता है थर्ड पर्सन में. एंड ऑब्जेक्टिव में आता है मी अस फॉर फर्स्ट पर्सन, यू फॉर सेकंड पर्सन, एंड हिम हर इट देम फॉर थर्ड पर्सन. पॉजेसिव केसेस में जो होता है वो आता है माइन फॉर फर्स्ट पर्सन, आर्स फॉर फर्स्ट पर्सन, yours for second person, his, her, its and their for third person. Similarly, जो अभी हमने नाउन केसेस देखा था, प्रोनाउन केसेस, पर्सनल प्रोनाउन केसेस देखे थे. अब नाउ वी विल सी प्रोनाउन केसेस चार्ट. सो उसमें जेंडर्स में जो होता है वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन के लिए यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन भी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. थर्ड पर्सन जो होता है वो हिज होता है मैस्कुलाइन के लिए, हर्स होता है फेमिनाइन, एंड न्यूटर्स होता है इट्स के लिए, एंड देयर्स फॉर ऑल जेंडर्स. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी इन क्लास 5. यू शुड नॉट क्रॉस द रोड्स हैस्टली. वर्ड्स रिटन इन बोल्ड ऑल अबव द सेंटेंस आर नॉमिनेटेड केसेस फॉर पर्सनल प्रोनाउन. जैसे फादर ब्रॉट अ पेयर ऑफ शूज फॉर अस. सो अस इज अ is highlighted. He is waiting for you. You is highlighted in this sentence. Words written in bold, जो bold में words लिखे हुए हैं उन sentence में, वो सब जो है वो adjective है. Cases हैं for personal pronoun. For example, this water bottle is mine. Mine जो हो गया वो adjective हो गया इधर. This is are yours. This is all yours, right? Words written in bold and all the above sentences are possessive cases of personal pronoun. Please do practice at home. You have a nice day.